Good morning everyone. I hope you all are doing good. Let's start with exercise 9.4 remaining questions. Question number 12. Question number 12 says a woman buys 3 toffees for ₹1. The woman buys 3 toffees for ₹1. So we all know that ₹1 has 100 paise. So I can say that the women brought 3 toffees for 100 paise, which means she bought 1 toffee for 100 divided by 3 paise. Fine. Now, and sells them at 40 paise each. Now, this is the cost price. So, cost price of 1 toffee is 100 by 3 paise. Now, selling price of 1 toffee is selling price of 1 toffee is 40 paise. So, selling price of 3 toffees is 40 into 3, which is 120 paise. Now, you have to find out the profit percentage. Now you know the cost price of 3 toffees. Cost price of 3 toffees is 100 paise. Cost price of 3 toffees is 100 paise and selling price of 3 toffees is 120 paise, which means the woman is making a profit. So how do you find out profit percentage? Selling price minus cost price upon cost price into 100. Selling price is 120, cost price is 100 paise upon 100 into 100. ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उस वुमन को? 20%. देखो हमने क्या किया, एक औरत ने 3 टॉफी खरीदी ₹1 की. हमें पता है ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो हमने मान लिया कि 3 टॉफी 100 पैसे की आई. अब उसने ये कॉस्ट प्राइस है. अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी इज 40 पैसा, तो 3 टॉफीज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 पैसा. तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में डाल के. ठीक. I hope this is clear. Let's move forward to next question. Question number 13. A shopkeeper buys 2 dozen articles at a rate of 3 for 2. यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है कि उसने कितने डजन आर्टिकल्स खरीदे? 3 डजन. A shopkeeper buys 2 dozen articles. Number of articles in 2 dozen is 2 into 12. 12 क्यों? क्योंकि 1 डजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं. तो कितने आर्टिकल्स खरीदे उसने? 24 आर्टिकल्स खरीदे एट द रेट ऑफ 3 for ₹2. उसने 3 आर्टिकल खरीदे ₹2 के. कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज ₹2. So cost price of 1 article is 2 by 3. ये पता है यूनिटरी मेथड यहाँ चला जाएगा. Therefore cost price of 24 articles
is 2 by 3 into 24, 3 8 are 24, that is 16 rupees. So cost price of 24 articles or 2 dozen articles is rupees 16. Now, and sells them at 2 for rupees 3. Now selling price की बात कर रहे हैं. Selling price of 2 articles is rupees 3. So selling price of one article is rupees 3 by 2 and selling price of 24 articles is 3 by 2 into 24. So 2 ones are 2, 2 12s are 24. So the selling price of the 24 articles is rupees 36. Now calculate his profit percent. आपको क्या निकालना है? Profit percent. Profit percent का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Selling price minus cost price upon cost price into 100. Selling price is 36 rupees, cost price is 16 rupees upon 16 into 100, which is 20 upon 16 into 100. 4 5s are 20, 4 4s are 16. 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So 5 into 25 is 125. So the shopkeeper made a profit of 125%. देखो शॉपकीपर ने 2 डजन आर्टिकल्स खरीदे हैं, ठीक है. 2 डजन आर्टिकल्स में कितना आर्टिकल आता है? 24 आर्टिकल आते हैं. उसने 3 आर्टिकल खरीदे हैं 2 रुपए के, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो गई? 2 by 3. 24 आर्टिकल्स की कॉस्ट हो गई रुपीज 16. फाइन. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज रुपीज 3. अब वो बेच रहे हैं 2 आर्टिकल 3 रुपए में, तो एक आर्टिकल 3 by 2 में बेच देगा, तो 24 आर्टिकल्स 36 रुपीज में बेच देगा. और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो आप सबको बहुत अच्छे से आता ही है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 14. By selling a shop for 44,000, so selling price of shop is rupees 44,000. A man makes a profit of 10%. Profit कितना बन रहा है उसको? 10% का. Fine. Now find his profit and also find the cost price. आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%. सेलिंग प्राइस है 44,000, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो. 10 CP इज इक्वल टू 44. इसको ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे ब्रैकेट के अंदर हर चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 44,000 एंड 2 zeros, so this becomes 44 lakh minus 100 CP. So ये इधर आएगा, तो दिस इज 10 CP प्लस 100 CP is equals to 44 lakh. So 110 CP is equals to 44 lakh upon 110. 0 से 0 cancel, 11 4s are 44 and 4 zeros. So the cost price of shop is 40,000. Now how do we find out profit? Profit कैसे निकालते हैं हम? SP minus CP.
ठीक है, तो एसपी कितना है 44,000 और सीपी कितना है 40,000. Therefore, the man made a profit of rupees 4,000. So the cost price of shop is 40,000 and the man made a profit of rupees 4,000. Let's do one more question. A fruit vendor bought a basket of containing 80 apples for rupees 100. So, cost price की बात कर रहे हैं. Cost price of 80 apples was rupees 100. ठीक. Now, the question says 8 of these apples were found rotten. Rotten मतलब सड़े हुए. तो 8 एप्पल एकदम सड़े हुए निकले. अब 8 एप्पल सड़े हुए निकले तो वो तो बिकेंगे नहीं. तो एप्पल्स लेफ्ट, कितने एप्पल्स बच गए? 80 minus 8 which is 72. ठीक. Now the question is he sold the rest at rupees 1.20 each. अब यहाँ पे उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल उसने लगाया rupees 1.20. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 apples would be 1.20 into 72. आगे पढ़ लेते हैं. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. आपको प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. तो देखो उसने अब उसको क्या पड़े? 72 एप्पल्स पड़े 100 रुपीज के. देयरफॉर सीपी ऑफ 72 एप्पल्स फॉर हिम इज रुपीज 100. ठीक. नाउ 72 एप्पल्स को उसने 1.20 रुपीज पे बेचा. तो निकालते हैं 72 इंटू 12. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 7 1s are 7 and 8. So 4, 6, 8. So this is 8, 6, 4. यहाँ से एक 0 तो 0 as it is. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2. तो उसको एक्चुअल में कितने रुपए का बेचा उसने? 72 एप्पल्स को 86.40 का. अब देखो इधर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हुआ? लॉस. बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100. कॉस्ट प्राइस कितना था? 100. सेलिंग प्राइस कितना था? 86.40. कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100. ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 13.60%. So the shopkeeper or fruit vendor had to take a loss of 16.6% या 16.60% बोल लो. That does not make a huge problem. So now, what is your homework? You have to revise classwork twice and make notes. ठीक है? And if you have any doubts, you can ask me in the live class. लाइव क्लास इसीलिए हो रही है ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और अगर आपके डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप सॉल्व करवा पाओ. जैसे जैसे आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.